Hello, good evening everyone. I hope I'm audible to you, right? Please let me know in the chat box. Am I audible to you all? Okay, fine. So we'll start with today's topic. Last time हमने ये देखा था ना? Okay, hello, fine. So लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या रहता है, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके आप और क्या क्या बोल सकते हो. सो नाउ विल जस्ट टॉक अबाउट मिड पॉइंट फॉर्मूला. जैसे आप डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड आउट करते हो, if suppose there is a point A with coordinates x1 y1 and there will be point B with coordinates x2 y2, then आप डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं? मैंने आपको बोला था सबसे पहले बड़ा वाला स्क्वायर रूट का साइन कंसीडर करोगे, देन फर्स्ट ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस सेकंड ब्रैकेट का स्क्वायर. फर्स्ट ब्रैकेट पे आप कंसीडर करोगे x1 माइनस x2, सेकंड ब्रैकेट पे आप कंसीडर करोगे y1 माइनस y2. So this was our formula for distance formula. Next उसके बाद हमने भी कंसीडर किया, देखो if p with coordinates x and y is equidistant from A and B, then how can we find the coordinates for that P? Similarly, अब हम check करेंगे that how should we find out the midpoint formula and what will be the sum based on it. Can we start that? Okay. So here we have our very first question. If 1, 2, 4y, x6 and 3, 5 are vertices of a parallelogram taken in a order, then find the values of x and y. So for solving these types of question, आपको ये पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम मतलब क्या रहता है, उसके प्रॉपर्टीज क्या क्या रहता है, एंड सबसे पहले अभी हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्टेंस के बारे में. सो बेसिकली द थिंग ये है कि आपको पैरेललोग्राम की अपोजिट जो मिलती है वो ये समझ में आना चाहिए, राइट? सो वी जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. Here we have considered a parallelogram ABCD such that जिस ऑर्डर में आपको दिए गए थे कोऑर्डिनेट्स वो हमने कंसीडर किए थे. A के कोऑर्डिनेट्स बन जाएगा 1 2, B will be 4 y, C will be x 6 and D will be 3 5. Okay, so we have to find what will be values of x and y. But before that, जैसे मैंने आपको बोला कि प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम आपको क्लियर होनी चाहिए. आपको ये पता है दैट पैरेललोग्राम मतलब क्या रहता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड diagonals of parallelogram, diagonals of parallelogram bisect each other. What is the meaning of bisect? अगर E आपको point मिल रहा है, E is a point of intersections of two diagonals, then just because of that E, AE and CE will be equal, BE and EB will be equal. Or in other words, we can say that the point of intersection of two diagonals is midpoint for each diagonal. AC के लिए मिड पॉइंट रहेगा E, M के लिए BD के लिए मिड पॉइंट रहेगा E. Okay, so here we have first diagonal BD and AC. We know that in a parallelogram the opposite sides are equal and diagonal bisects each other. So for that bisect is अब ये बोल सकते हैं. Since ABCD is a parallelogram, जाएगा. So opposite sides are equal, parallel and diagonals bisect each other. So we can say that here ABCD is a parallelogram. If this is the case, then what can we say? Diagonal bisects each other at point E. Diagonals bisects each other at point E. Diagonal bisects each other at point E. So E is nothing but E will work as a midpoint for diagonal AC as well as BD. So we can say that BD के लिए midpoint रहेगा E. In other words, BE and DE will be same. AE and CE will be same. Right? So E will be midpoint. So we just consider the coordinates of E as x, y.
midpoint रहेगा. So now we have these four vertices A, B, C, D. So we'll consider the diagonal AC. Diagonal AC. A के लिए आपके पास coordinates है 1, 2. C के लिए आपके पास coordinates है x, 6. So can you find out what this one x1 y1 x2 y2, राइट. सो आपको मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करना है. मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता है. मिड पॉइंट इज नथिंग बट जैसे आप हमेशा डिस्टेंस कंसीडर करते हो. अगर ये वाला रहेगा आपका एक्स वाई से यहाँ से यहाँ तक x1 x2 x1 x3 ब्रैकेट स्क्वायर एंड सो ऑन सब आप कंसीडर करते हो तो फिर आपको x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट इसी वजह से मिलेगा, राइट. सो लेट्स कंसीडर कोऑर्डिनेट्स ऑफ a will be x1 y1. Coordinates of B will be x2, y2. Let us consider coordinates of B will be x2, y2. Hence, x1 is 1, y1 is 2, and x2 and y2 will be x and 6 respectively. So, can you tell me what will be coordinates of E, because E will work as a midpoint of this. So by midpoint formula, we can say that coordinates of E equals to जो आपने x and y consider किए थे. x के लिए हम क्या बोल सकते हैं? x1 plus x2 divided by 2. So x1 is nothing but 1 plus x2 के लिए आपको x मिलता है जो हम as it is consider करेंगे divided by 2, comma y1 plus y2, which is nothing but 2 plus 6 divided by 2. 2 plus 6 divided by 2. जो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो इजीली वो आप सिंप्लीफाई करो, अदरवाइज ये रहेगा एज इट इज 1 plus x upon 2 का. So 1 plus x divided by 2, comma 2 plus 6 will give you answer as 8. So 8 divided by 2 will be 4. This will be coordinates of a E when we are considering E as a midpoint of AC. जैसे हमने A and C का midpoint consider किया, similarly for the next case, we will consider E as a midpoint of B. We will consider E as a midpoint of B. तो फिर again B के जो आपको मिल रहे हैं, B के coordinates से 4y and D के coordinates से 3 5. Again आप midpoint formula का use करोगे. Midpoint formula क्या रहता है फिर x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2. So let us consider midpoint of BD, which is nothing but E as a E के coordinates आपको क्या मिलेंगे फिर जो फर्स्ट हमने प्रूव किया था उस केस में हम E as a midpoint of AC ले रहे थे. So now we are talking about E as a midpoint of BD. तो coordinates of E आपको क्या मिलेंगे देखो x1 plus x2 upon 2, that is 4 plus 3 upon 2, comma y1 plus y2. तो y1 का वैल्यू हम y as it is consider करेंगे and y2 will be 5. y2 will be 5 divided by 2, y1 plus y2 upon 2 ये बन जाएगा. Again ये आप सिंप्लीफाई कर सकते हो. This is nothing but 7 upon 2 and this will be y plus 5 on. ये जो हमने किया ये क्या किया था E तो पॉइंट आपका सेम ही है. E पॉइंट यूनिक ही है बट सबसे पहले हम बोल रहे हैं E एज अ मिड पॉइंट ऑफ AC. उसके बाद हमने किया E एज अ मिड पॉइंट ऑफ BD. बस वी नो दैट E इज इक्वल पॉइंट. फर्स्ट से E के आपको कोऑर्डिनेट्स मिल रहे थे ऐसे, सेकंड इक्वेशन से आपको ये मिले. सो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट कैन वी से अब x कोऑर्डिनेट्स करोगे इक्वेट, y कोऑर्डिनेट्स करोगे इक्वेट. So we can say that x plus 1 upon 2 is same as 7 upon 2. We just have to simplify this. डिनोमिनेटर सेम है तो फिर आप कैंसिल कर सकते हो या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कंसीडर करो. twice x plus 2 equals to 14. So twice x will be plus 2 बन जाएगा minus 2. Hence twice x का आंसर अगर 12 रहता है then x will be 6. Getting this one? Here हमने क्या किया
ई आपका एक ही पॉइंट था, बट फर्स्ट केस में हम ई एज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी कंसीडर करेंगे, सेकेंड केस में हमने ई एज अ मिड पॉइंट ऑफ बी डी कंसीडर किया. सो आफ्टर दैट just equating the corresponding coordinates आपको एक्स्ट्रा आंसर मिला. Similarly अगर आप y के coordinates करोगे equate, then what can you say? 4 is equal to y plus 5 upon 2. 4 is equal to y plus 5 upon 2. Again cross multiplication consider करने के बाद जैसा मिलेगा आपको. Correct? 8 is equal to y plus 5. That is y will be 8 minus 5. So coordinates of E will be 6, 3. This is all about your question. Done with this? समझ में आ रहा है ये आपको? क्लियर हो रहा है पूरा? ये क्या था? हमने सिर्फ मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज किया. मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करें. So now we'll just go for the next type. ये वाला जैसे आपने मिड पॉइंट के लिए किया था, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन हम कंसीडर करेंगे जिसमें अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा. फॉर्मूला आपका सेम ही है. The only case is that distance formula आप each and every time के लिए use करते हैं, जो भी equidistance का केस है use करोगे. See, the question is that find the area of rhombus if its vertices are 3, 0, 4, 5, minus 1, 4 and minus 2, minus 1 taken in a order. ठीक, आपको एरिया फाइंड आउट करना था. देखो हिंट भी आपको दे दिया, आपका काम और भी इजी हो गया. अभी area of rhombus is nothing but half into product of its diagonal. देखो हमने ये कई बार किया था जब आपको वो चंपा चमेली का हमने कुछ लास्ट टाइम क्वेश्चन देखा. उस केस में भी आपको सारे साइड्स इक्विडिस्टेंट मिल रहे थे, सारे साइड्स इक्वल मिल रहे थे. सो फॉर दैट केस हमने सबसे पहले ये चेक किया कि डायगोनल सेम है कि नहीं, बिकॉज अगर क्वाड्रिलेटरल के सारे साइड्स भी सेम मिलते हैं एंड डायगोनल भी सेम मिलते हैं तब वो बन जाता है आपका स्क्वायर. बट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर अपोजिट, राइट? तो फिर वो बन जाएगा आपका रोम्बस. इस रोम्बस का अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना है, देन एरिया ऑफ रोम्बस इज नथिंग बट हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स. तो एक बार आप डायगोनल फाइंड आउट करो तो फिर इजीली सर मिल जाएगा. एंड डायगोनल आप फाइंड आउट तो कैसे करोगे? बिकॉज आपको ये पता है पी क्यू आर एस अगर आपका रहता है रोम्बस, देन पी के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं 3, 0, क्यू के कोऑर्डिनेट्स मिले हैं आपको 4, 5, आर के बन जाएंगे -1, 4 एंड एस विल बी -2 एंड -1. तो आपको डायगोनल्स फाइंड आउट करने हैं. डायगोनल्स इज नथिंग बट पी आर फाइंड आउट करना होगा, क्यू एस फाइंड आउट करना होगा, व्हिच इज नथिंग बट आपको डिस्टेंस फार्मूला का यूज करना है. डिस्टेंस फार्मूला क्या रहता है एक बार देखते हैं. बड़ा वाला स्क्वायर रूट का साइन फर्स्ट ब्रैकेट स्क्वायर प्लस सेकंड ब्रैकेट स्क्वायर. फर्स्ट ब्रैकेट में आप x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कंसीडर करोगे, सेकंड ब्रैकेट में आप y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस कंसीडर करोगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू फाइंड आउट डिस्टेंस PR. तो फिर x1 y1 हम कंसीडर कर सकते हैं एज अ कोऑर्डिनेट्स ऑफ P. x1 will be 3, y1 will be 0. नेक्स्ट केस R के लिए -1 and 4 will be x2 and y2 respectively. So diagonal PR equals to बड़ा वाला स्क्वायर रूट का साइन x1 minus x2 या फिर x2 minus x1 -1 -3 whole bracket square plus y2 minus y1 whole bracket square. x2 minus x1 whole bracket square plus y2 minus y1 whole bracket square. So first diagonal is nothing but -1 -3. What will be your answer? -1 -3 is nothing but -4 whole bracket square plus 4 minus 0 is same as 4. So D1 can be written as -4 square is nothing but -4 into -4, which will give us answer as a +16 plus 16. That is D1 will be root of 32. अगर आप ये और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हो
then we can say that 32 is nothing but 16 into 2. 32 can be written as 16 into 2. तो अगर वो वाला 16 स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो फिर आपको मिलेगा 4 एंड द स्क्वायर रूट देयर विल बी 2 ओनली. ये हो गया आपका पी आर का डिस्टेंस. दिस इज नथिंग बट लेंथ ऑफ पी आर. सिमिलरली आपको अभी क्या करना है, सेकेंड डायगोनल फाइंड आउट करना है. जैसे फर्स्ट के लिए आपने पी आर लिया, सिमिलरली फॉर सेकेंड डायगोनल अगेन हम क्यू एंड एस कंसीडर करेंगे. सो लेंथ ऑफ क्यू एस फाइंड आउट करना है. डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, बड़ा वाला रूट से x2 minus x1 and y2 minus y1. So before that, first of all हम ये देखेंगे कि x1 का वैल्यू क्या है, x है, x2 क्या मिलेगा आपको एंड y2 आपको क्या मिलेगा. So let us consider s के कोऑर्डिनेट्स आपके बन जाएंगे x2 y2 as -2 and -1 respectively. So now for d2 या फिर डायगोनल qs x2 minus x1 -2 -4 whole bracket square -2 -4 whole bracket square plus -1 -5 whole bracket square -1 -5 whole bracket square equals क्या क्या मिलेगा देखो आपको. -2 -4 is nothing but -6 -6 square is nothing but plus 36 and this is again -6 whole bracket square. So क्या मिलेगा आपको देखो, d2 equals to -6 square is 36 plus 36 which is same as 2 times 36. तो अगर 36 आप लेते हो बाहर स्क्वायर रूट के बाद अगर 36 आएगा तो 6 बन जाएगा, in the square root there will be 2. So first diagonal length मिला आपको 4 root 2. सेकेंड डायगोनल का लेंथ मिला है आपको 6 टाइम्स रूट. फॉर्मूला आपके पास है, आपको डायगोनल्स के लेंथ का पता है, जस्ट फॉर्मूला का यूज करो. सो एरिया ऑफ द रोम्बस PQRS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ PR into QS which is nothing but D1 into D2. So half of D1 हमें मिला है अभी 4 root 2, D2 बन जाएगा आपका 6 root 2, nothing but 6 root 2. So after solving this, what can we get? 2 ones are, 2 twos are, so 2 into 6 will be 12, 2 into 6 and root 2 into root 2. Root 2 into root 2 is nothing but root 2 whole bracket square जो बन आपको again. So its answer will be 24 square units because आपको area find out करना है. ये जो आपका यूनिट रहता है स्क्वायर यूनिट, it will carry half mark. So don't forget to write the unit as well. समझ में आया हमने क्या क्या किया. सबसे पहले आपने D1 फाइंड आउट किया, D2 फाइंड आउट किया, आफ्टर फाइंडिंग D1 and D2 यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला आपने सिर्फ एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल ये यूज किया. दैट्स समझ में आया ये. यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट. So now we'll just try to find out the next part. सबसे पहले मिड पॉइंट पे बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलेंगे. आफ्टर दैट आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड एंड नेक्स्ट वन इज नथिंग बट सम बेस्ड ऑन फाइंडिंग एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, अच्छे से याद रखिए. जैसे आपने किया था डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए, सिमिलरली ये वाला रहेगा आपका फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. तब आप ये फाइंड आउट कर सकते हो. आपको ये पता है दैट एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज गिवन एज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज गिवन एज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. बट व्हाट विल बी द केस अगर आपको हाइट पता ही नहीं है तो, बिकॉज बेस तो आप कैसे भी करके लेंथ फार्मूला का यूज करके डिस्टेंस फार्मूला का ये x1 y1 x2 y2 इसका यूज करके आप बेस तो फाइंड आउट कर सकते हो, बट अल्टीट्यूड तो नहीं फाइंड आउट कर सकोगे, राइट. अगर अल्टीट्यूड आपको पता होती या फिर आप फाइंड आउट कर सकते हो. ये गिवन केस रहेगा दैट फुट ऑफ परपेंडिकुलर विल बी दिस, देन इजीली आप area of triangle के लिए half into base into height which is nothing but altitude.
ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। बट व्हाट केस अगर आपको ये पता नहीं है, करेक्ट, ये वाला भी आपके पास था इन 9th क्लास, आपने ऑलरेडी वो फॉर्मूला किया था जिस केस में आपको सिर्फ साइड्स पता होते हैं, राइट। साइड्स क्या मिलेंगे आपको, सपोज ये ए का अपोजिट साइड बन जाएगा स्मॉल ए, बी का अपोजिट बन जाएगा स्मॉल बी, सी का अपोजिट बन जाएगा स्मॉल सी। ये रहता है आपका हेरॉन फॉर्मूला। आप कब यूज करते हो, जब आपको सिर्फ वर्टेक्स के बारे में पता होता है तब, सॉरी जब आपको सिर्फ लेंथ के बारे में पता होता है तब आप वो सबसे पहले हाफ पेरीमीटर का आंसर निकालते हो, तो फिर उसके बाद फॉर्मूला का यूज करके ये फाइंड आउट करोगे। बट इस केस में आपको ये करना है कि इसको सिर्फ वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल्स दिए गए होंगे, ना कोई साइड आपको पता है, ना कि हाइट क्या है पता है, एंड ऑल अदर थिंग्स। सो नाउ वी जस्ट ट्राई टू चेक हाउ कैन वी फाइंड आउट एरिया ऑफ a triangle such that know what will be the vertices of it. So let us consider A के vertices बन जाएंगे x1 y1, B के vertices बन जाएंगे x2 y2 and C के vertices बन जाएंगे x3 y3. So if this is the case, then area of a triangle ABC, area of a triangle ABC is given as half of, ये half का हमेशा रहता ही है, करेक्ट। हम जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फाइंड आउट करते हैं उसमें भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, सिमिलरली इस केस में भी आपको हाफ कंसीडर करना है ही। बट द नेक्स्ट वन इज दैट हाफ ऑफ x1, देखो अच्छे से देखो, सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, हमने पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कंसीडर किया, सो x1 इंटू y2 माइनस y3। याद कैसे रखोगे, हम बोल रहे थे a के बारे में, a का हमने सिर्फ x कोऑर्डिनेट कंसीडर किया एंड अपोजिट साइड के लिए गए, a का हमने x कोऑर्डिनेट कंसीडर किया इनटू a की जो अपोजिट साइड है उसके डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट, गेटिंग दिस वन। प्लस अब क्या करोगे, सपोज मैंने b का x कोऑर्डिनेट फिक्स किया है, b का x कोऑर्डिनेट आपने फिक्स किया तो फिर b की अपोजिट साइड, b की अपोजिट साइड जो भी आपको मिलती है उस केस में आप y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस फाइंड आउट करोगे। सो b को मिला x2 अगर आपने किया है फिक्स तो उसके लिए अपोजिट पे आपको y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कंसीडर करना है which is nothing but y3 minus y1 एंड नेक्स्ट वन जो भी रिमेनिंग पार्ट है अभी हम x कोऑर्डिनेट फिक्स करेंगे वर्टेक्स c से, x कोऑर्डिनेट फिक्स किया वर्टेक्स c से, सो c into y1 minus y2, c के लिए अपोजिट साइड आपका था a एंड b, तो a का y कोऑर्डिनेट माइनस b का y कोऑर्डिनेट, this will be your formula for triangle ABC। क्या किया है याद आ रहा है, ये वाला फॉर्मूला आप कब यूज करोगे, जब आपको सिर्फ वर्टेक्स के बारे में बोला जाता है, व्हाट विल बी थ्री वर्टाइसेस ऑफ एनी ट्रायंगल। अगर किसी भी ट्रायंगल्स के वर्टाइसेस आपके पास रहते हैं तो फिर आप एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे, हाफ ऑफ तो आपको लिखना है। सबसे पहले आप ये कंसीडर करो कि हम फर्स्ट केस में a का x कोऑर्डिनेट फिक्स कर रहे हैं, सेकेंड केस में b का x कोऑर्डिनेट फिक्स कर रहे हैं एंड थर्ड केस में आप c का x कोऑर्डिनेट फिक्स कर रहे हैं। ओके, डन विद दिस। आफ्टर दैट फॉर दैट a, मतलब अगर आपने x कोऑर्डिनेट फिक्स किया था a के लिए, उसके अपोजिट जब अपोजिट केस में जो भी आपको y का डिफरेंस मिलते हैं हम वो कंसीडर करेंगे, y2 minus y3, y2 minus y3, similarly y3 minus y2 and so on. Yes. Hello, happy, thank you। सो जो अभी आपने फॉर्मूला देखा उस फॉर्मूला को बेस हम एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। आप ये वाला फॉर्मूला कब यूज कर सकते हो, जब आपके पास तीनों भी वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स रहते हैं तब भी आप ये यूज कर सकते, राइट। अभी आपके पास तो दो वर्टाइसेस है, सबसे पहले ए बी सी कंसीडर करो। सपोज ए आपको मिल जाएगा -5 -1, बी आपको मिल जाएगा 3 -5 एंड सी विल बी 5, 2 एंड
C will be 5, तो देखिए एक बार फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमने याद कैसे रखा था, मैंने आपको बोला कि हाफ ऑफ कंसीडर करो x1 x2 x3, x1 x2 x3, सो x1 आपने लिया था a से, तो अभी a को कर दो इग्नोर, एंड जो रिमेनिंग बचे उसके में आप y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस कंसीडर करो, x2 इंटू इसके लिए डिफरेंस, x3 इंटू ये वाला डिफरेंस, डन, गेटिंग दिस वन। तो x1 y1 हम पुट करते हैं एज अ कोऑर्डिनेट्स ऑफ a, x2 y2 will be coordinates of b, and x3 y3 will be coordinates of c, x3 y3 will be coordinates of c, तो ये फॉर्मूला आपके पास है, आपके पास x1 x2 x3 y1 y2 y3 इसके वैल्यूज है, जब पुट करो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल abc इक्वल्स टू हाफ ऑफ the bracket x1 is nothing but -5 into y2 का वैल्यू क्या है, देखो y2 is nothing but -5 and y3 is 2, so y2 minus y3, so we'll consider -5 minus 2 plus, अभी p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कर देते हैं फिक्स, so I will write only 3 here into the bracket y3 minus y1 into the bracket y3 minus y1 which is nothing but 2 minus of -1, जब भी आपको ये माइनस का केस मिलता है ऑलवेज रिमेम्बर यू हैव टू पुट द ब्रैकेट्स सो दैट ये माइनस माइनस प्लस कैसे होता है ये समझ सकते हो, अगर सब कुछ आप ठीक में लिखते हो तो फिर समझ में नहीं आएगा कि का रॉन्ग आंसर होता है, ठीक है, जब भी माइनस साइन का केस मिलता है ऑलवेज रिमेम्बर दैट यू हैव टू पुट ब्रैकेट फॉर इट, प्लस फॉर द नेक्स्ट टर्म, थर्ड टर्म हम क्या करेंगे, C पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कर देते हैं फिक्स व्हिच इज नथिंग बट 5 into y1 minus y2, y1 तो गिवन है -1 and y3 will be y2 will be -1, so minus of -1, ये सिर्फ आपको करना है सॉल्व, half will be as it is, half will be as it is, -5 into -5 minus 2 is nothing but -7 plus 3 into 2 minus of -1 which is nothing but 2 plus 3 जो बन जाएगा 3 and 5 times -1 into minus of -5 which is nothing but +5 +5, so फर्स्ट केस में आपको मिलेगा -5 into -7 माइनस into माइनस बन जाएगा आपका प्लस, ओके, गेटिंग दिस वन, समझ में आ रही है, ठीक है, नेक्स्ट 3 into 3 क्या रहता है आपका 9, 3 into 3 will be 9 and 5 into 4 will be 20, 5 into 4 will be 20, so अगर आप ये करोगे add 20 plus 9 is nothing but 29, 29 plus 35 will be 64, so 64 divided by 2 give you answer as a 32, आप एरिया के बारे में बोल रहे हैं तो यूनिट आपको, ठीक है, so area of a triangle ABC is given as 32 square units, area of a triangle ABC is given as 32 square units, समझ में आया, फॉर्मूला अच्छे से याद रखो तो फिर इजीली आप ये कर पाते हो, डन विद दिस, समझ में आ रही है, शुड बी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउट है कोई तो पूछ सकते हो, सो ये हमने फाइंड आउट कर दिया, आपको क्या करना था, 1/2 फिक्स करना है, देयर विल बी 3 टर्म्स इन द नेक्स्ट ब्रैकेट, फर्स्ट टर्म के लिए a का x कोऑर्डिनेट फिक्स करो, सेकंड टर्म के लिए b का x कोऑर्डिनेट फिक्स करो एंड थर्ड टर्म के लिए c का x कोऑर्डिनेट फिक्स करो, जो अगर आप a का x कोऑर्डिनेट कंसीडर करो सो उसके लिए ब्रैकेट में y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस एंड सो ऑन, ठीक है, we'll move for the next question. Yes. Again, we have to find the area in which vertices are given as the 2, 3, -1, 0 and 2, -1. Again, आप ABC put करो.
A is nothing but 0.23, B is nothing but point minus 10 and C is nothing but 2 minus 4. तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है. वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज नथिंग बट हाफ ऑफ x1 into y2 minus y3, x2 into y3 minus y1 and x3 into y1 minus y2. ओके, हो गया इतना. नेक्स्ट देखिए फिर. सो ये x1, x2, x3, y1, y2, y3 सबसे पहले आप कंसीडर करते हैं. x1, y1 is nothing but coordinates of A. x2, y2 is nothing but coordinates of B, and x3, y3 will be coordinates of C. x1, x2, x3. समझ में आ रहा है ये? ठीक है. So we'll just write down the formula here. Area of a triangle ABC equals to half of कर दिया फिक्स. तो आपको लिखना था x1 is nothing but 2 into the bracket y2 minus y2. So 0 minus of minus 0 minus of minus plus x2 कर देते हैं फिक्स. So plus -1 into bracket y3 minus y1 minus 4 minus 3 minus 4 minus 3 plus x3 कर देते हैं फिक्स which is nothing but 2 into y1 minus y1 minus y2 which will be 3 minus 0. ठीक है. So solve करते हैं फिर half of 2 times 0 minus of minus 4, but minus minus is nothing but plus, so it will be 2 times 4. Next plus आ जाएगा इधर. Again ये minus 1 ऐसे किस कंसीडर करो. what will be the value of minus 2 minus 3. देखो फर्स्ट टर्म के बाद आप मल्टीप्लिकेशन साइन करेंगे, बट जो सेकंड ब्रैकेट है आपका उसमें आप सिर्फ डिफरेंस ही कंसीडर करें. So minus 4 minus 3 is nothing but minus 7 plus 2 times 3 minus 0 is nothing but 3. So its answer will be 1 half of 2 into 4 is nothing but 8 minus 1 into minus 7 minus into minus becomes plus, so it will be 7 only, and 2 into 3 will be 6. So just yeah, solve karo 1 half times 15 plus 6 which is nothing but 21. सो आंसर आपका कुछ ये 21 अपॉन 2 मिलेगा, बट डिवाइडेड बाय 2 है. आप इजीली ये जो कंसीडर कर सकते हो. मींस द आंसर विल बी 10.5 टाइम्स 10.5 स्क्वायर यूनिट्स. Therefore area of a triangle ABC is given at 10.5 square units. Area of a triangle is 10.5 square units. Getting this one? Sorry. So this will be your. आज के लेक्चर में हमने क्या किया देखो. सबसे पहले जो लास्ट टाइम का आपने डिस्टेंस फॉर्मूला का देखा था, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते ही हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या ये चेक किया. आज के लेक्चर में हमने टोटल 2 फॉर्मूले रिवाइज किए, वो अच्छे से याद रखना बिकॉज उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी आते हैं. सिंगल मार्कर भी रहता है एंड 3 मार्कर भी रहते हैं. मिड पॉइंट फॉर्मूला इज नथिंग बट अगर a एंड b का मिड पॉइंट रहेगा आपका m, then x coordinate will be x1 plus x2 upon 2 comma y1 plus y2 upon 2. ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है. उसके बाद आप क्या करोगे. उसके बाद हमने देखा था एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. एरिया ऑफ अ ट्रायंगल के लिए हाफ ऑफ सबसे पहले x1 फिक्स करो, x2 फिक्स करो, x3 फिक्स करो. आफ्टर दैट y1 minus y2, y3 minus y1 and y1 minus y2. ये हमने लिख दिया. So this is all for today. Okay. See you in the next lecture. Thank you.